الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسجد حرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الخمر والميسر والأنعام والأزلام. اس جلسہ میں آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر لفظ شاعری کی جزاعت کر رہا ہوں وہ ہے منشیات حرام کی. دینی بھائی موجودہ وقت میں منشیات کی بہت سارے قسم ایجاد ہو گئی جو اخبارات کی خبروں کے مطابق دنیا میں تقریباً 1000 منشیات کی قسم پائی جاتی ہے جو دکانوں ہوٹلوں سڑکوں اور بازاروں میں نام اور شکل بدل بدل کر سستے داموں میں ملتی ہے جس کو ہمارے نوجوان استعمال کر کے اپنی صحت اپنی جوانی اور اپنا مال برباد کرتے ہیں. لہذا وہ تمام قسم جو نشان حرام اور ناجائز مانی جائے چاہے وہ ہیروئن ہو چرس ہو افیون ہو بھنگ ہو گانجا ہو پھول ہو سگریٹ ہو گٹکا ہو کھائنی ہو انجیکشن ہو چاکلیٹ ہو ٹیبلیٹ ہو کیپسول ہو سیال و جمع ہوا ہو مفرد و مرکب ہو طبی و مصنوعی ہو خواہشانہ مدن ہوئی ہو. یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا اگر تمہاری روٹی اور پانی سے نشہ آ جائے تو وہ بھی حرام ہے. معلوم ہوا کہ نام اپنے صحیح کی بات نہیں ہوتا بلکہ نشہ کا اعتبار ہوتا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل مسلم. ابھی ہم پہنچے ہوئے ہیں مدرسہ حسینیہ تعلیم القرآن جہاں آج جلسہ رکھا گیا. یہ پروگرام جو 11 تاریخ ہے آج. اس سے پہلے بھی میں ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں جلسہ کے بارے میں. آج آپ کو ہم لائیو جلسہ دکھلانے جا رہے ہیں. یہی مدرسہ حسینیہ تعلیم القرآن. یہاں بڑے بڑے مولانا آئے ہوئے ہیں ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں اور ودیش سے بھی جیسے سعودی عرب سے بھی لوگ سارے یہاں آئے ہوئے ہیں. آپ کو رزق دینے والا اللہ رب العالمین وہ مضبوط اور سب کو روزی دینے والا یقیناً کائنات کی عبادت کے قابل پیدا ہوئے ہیں. اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات بہت ساری آیتیں ہیں لیکن ان تمام آیتوں کو چھوڑتے ہوئے ایک دو آیت جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں اور ایک حدیث پیش کر کے گفتگو ختم کرنا جو ہے وہ شامل ہوگا. وہ آیت اس آیت کے بعد جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے رب العالمین کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تحقیق کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. کوئی بھی امت رسول سے خالی نہیں ہے. رسول کے آنے کے بعد تو یہ اللہ کی جوہر کرنی ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی ہو شجر حجر کوئی بھی ہو قبر سب کی عبادت اور بندگی کو تحریف سے جو ہم کام کرتے تھے. توریت اور انجیل اور زبور وغیرہ اپنی اصلی حالت کے اندر نہیں ہے. وہ پھیٹ پھانٹ جو ہے اور قرآن کے اندر یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کے متعلق اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ہم نے اس کو کیا کیا ہے ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہوگی اور کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں دی اور قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری دی. اگر قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دے رکھی اور لوگوں کے سینوں سے پتوں سے اور یہ ہے کہ اور دوسرے مقامات سے جس طریقے سے بھی جمع کرنے کی صورت ہو سکتی ہے قرآن مجید کی آیتوں کو جمع کیا صورتوں کو جمع کیا. ان کا کہنا ہے کہ ایک آیت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہتے ہو قرآن مجید ضائع ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک آیت جو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنتا تھا اور اس کو جو ہے میں نے نہیں پایا تو کھولتے کھولتے ایک صحابی کے پاس جو ہے وہ رضی اللہ عنہ
कुतुब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सवारी के पीछे हिमालय पीछे था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या मुआविया तदरीना हक़ुल्लाह अलैहि, तुम जानते हो अल्लाह का हक बंदे के ऊपर क्या है और बंदे का हक अल्लाह के ऊपर क्या है? उन्होंने कहा कि अल्लाह व रसूलुहु आलम। अगर नहीं हो तो ये कहने में कोई हरज की बात नहीं है भाई। बात में बता देंगे, देख करके बता देंगे, पढ़ करके बता देंगे। जो है आप जो है कहिएगा कि हजरत मुआज़ ने कहा, या कहिएगा कि जब प्यारे नबी ने कहा कि अतदरी या उमर मन साइल, जब हजरत जिब्रील आया और आने के बाद पूछा ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, ihसान क्या है, और सबका जवाब प्यारे नबी ने दिया। और आखिर में पूछा कि ये पूछने वाला, सवाल करने वाला कौन था? उन्होंने भी कहा कि अल्लाह व रसूलुहु आलम। बहुत सी हदीस के अंदर ये ताबीर इस्तेमाल हुई है। हज़रत उमर की गुफ्तगू हो रही है, बात हो रही है प्यारे नबी से। हज़रत और कुरान की अहमियत से बड़ी खूबसूरत रोशनी डाली है। मैं ये कह सकता हूँ कि हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। और हमारे दरमियान जो एक हवाई बातें और रस्मी चीज़ें आई हैं, उनके ताल्लुक से आपने जो बातें की हैं वो ये है कि वो जिनको बुजुर्गों की रिवायत न रहे याद, वो जिनको बुजुर्गों की रिवायत न रहे याद, उस शख्स की लोगों कोई पहचान नहीं है, उस शख्स की लोगों कोई पहचान नहीं है। ऐसा नहीं होगी, एक जैसी नहीं होगी तब तक कि हमारे साथ अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत नहीं आएगी। आज रस्मी चीज़ें, आज जो चीज़ें एलानिया तौर पर हमारे मुआशरे और समाज के अंदर आई, अकायद के ताल्लुक से, बिदआत के ताल्लुक से, जो चोर रास्ते से ये अकायद का हिस्सा बन गया है, उस ताल्लुक की बातों को इंशाअल्लाह सुनी जाएगी। अब आइए हमारे दरमियान हमारे फेरिस्ट के एक मायनाज खतीब, जिनकी इल्म व बलागत का चर्चा इल्म दोस्तों के दरमियान है, जिसकी मार्फत व हिकमत का चर्चा अहले इल्म खूब सुन चुके हैं, जिनसे मेरी मुराद फजीलतुश शायर और बाब इल्म व फन हजरत अक़दस समीउर रहमान साहब मदनी मत्तज़िल्लहुल आली, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हुज़ूर वाला तशरीफ़ लावे और अपनी हक़ानी नूरानी ईमानी मुकम्मल मुदल्लल बयानात से हम सामाईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। बड़े अच्छे अंदाज में था, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में, और नहीं तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी के गुंबद पर तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, पहाड़ों की चट्टानों में। इस तरह की वजह से कायम की जाती है, इसमें कुरान और हदीस का बयान होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बयान की जाती है, कुरान से दलाइल पेश किए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया कि हमने जितने भी रसूल हुए सबको यही वही कही गई, यही वही नाज़िल हुई सबके ऊपर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद नहीं। आज माशरे के अंदर जो बिगाड़ है वो इसका अकीदे का बिगाड़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर 13 साल है, और 13 साल के अंदर जिन लोग के अकीदे की इस्लाह करते हैं और उनके अकीदे की इस्लाह करने के बाद जो लोग आए मदीना उसे इस्लामी हुकूमत कायम है। तो मेरा के लोग की इस्लाह के लिए, लोगों की दुरुस्ती के लिए सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि उनके अकीदे की इस्लाह है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मान भी दो रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन भेजा, तो उनसे कहा सबसे पहले अव्वल मा तदऊहु इलैहि शहादतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। कोई दिखा दो। जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ हमारे किताब है, यहूद और नसारा। सबसे पहली चीज जो दावत
गवाही है और इस बात की गवाही है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो ईमान ले आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा मामूल आए बात का कि नहीं करे, वइन्हुम अताऊक लिल्लाह, इसमें तुम्हारी इताअत करने लगे, फालम हूं, तब बताओ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि खम्स सलातिन फी कुल्ली यौमिन व लैला, फिर बताओ कि तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई है, और फिर उसके बाद ज़कात और दीगर चीजों का जिक्र है। तो गोया कि सबसे पहली चीज जो है वो तुझी से बदल चाहते हैं, तो इस पर कायम रहना चाहिए। एकदम हसन के साथ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से बदल चाहते हैं, तो इस पर कायम रहे, सिर्फ रब की इबादत करें और मदद उसी से चाहें। और उसी को क्या करता है ये अदा, जब कोई पुकारने वाला पुकारता है तो उसको सुनता और जवाब देता हूं। बात है और क्या कहना है पुरानी शायद अक्सर ही रहते हैं, ये दोनों इतना करीब है, उसको छोड़ करके अपने ईमान को खराब करके रेनोल्ला के सामने आकर सजरीन होते हैं, उनसे सवाल करते हैं, उनसे बात रखी मांगते हैं। अल्लाह यखलुकु मा यशा व यज़रु मन यशा व अक़ीमा, सब पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो पता कोई किसी को बेटा नहीं दे सकता, कोई किसी को बेटी नहीं दे सकता, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो शफा दे सकता है। तो गोया कि अपने अक़ीदे की इस्लाह करें, सबसे पहली चीज अपने माशरे की इस्लाह करनी है, उम्मत के अफराद की इस्लाह करनी है, तो उसका सबसे पहली बुनियादी चीज जो है उसके अक़ीदे का आप चीज करेंगे तो आपके अमल बातिल हो जाएगा। वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, आप नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर तौहीद पर कायम नहीं है, शिर्क में मुब्तला है, इन इबादतों का कोई फायदा नहीं है, वही हश्र होगा जो काफिरों का। तो इस्लाह उम्मत की इस्लाह के लिए जरूरी है कि अकीदे का इस्लाह करें। और दूसरी चीज क्या है कि इताअत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अमालकुम, अल्लाह और रसूल की इत्तिबा करें, पैरवी करें, उनकी इताअत करें। अगर हम उनकी इताअत नहीं करते तो गोया कि अपने अमाल को बातिल कर दें, बेकार कर दें। मा अताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो दे उसे ले लो और जिस चीज से मना करे रुक जाओ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 2 चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ रहा हूं, इनको छोड़ के अगर हम किसी तीसरी तरफ जाएंगे जाहिर है कि गुमराही का रास्ता होगा। इस तरीके से इस्लाह उम्मत के लिए जरूरी है कि उम्मत के खैर यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को खैर और भलाई की तरफ बढ़ाए। यअमुरून बिल मारूफ, मारूफात का हुक्म दे, मुनकरात से रोके। अब दूसरी जगह बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें इसलिए दुनिया के अंदर पैदा किया गया है ताकि लोग भलाई का हुक्म दो और उम्मीद का दूसरे उम्मीद के ऊपर हक। अल्लाह का फरमाता है अल-मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युक़ीमूनस सलात व युतूनस ज़कात। हमारे मियां को सब्सक्राइब करें। ये मोमिन मर्द और मोमिन औरतें बात की दोस्त है। यअमुरून बिल मारूफ, वो एक दूसरे को अच्छाई का हुक्म देते हैं, मुनकर से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। तो हर मुसलमान को फर्ज है कि जो खैर की बातें अल्लाह और रसूल बताएं, जो मुनकर से रोके। अगर समाज में ऐसा बुराई फैल नहीं है, मुनकर है, उसको रोके नहीं, तो ये मुनकर मारूफ बन जाए। इसलिए जरूरी है कि जो लोग साहब
वो लोगों को मारूफात से हुक्म दे, मारूफात जानते हैं। जाहिर है हुक्म वही देगा जो मारूफात को जानता होगा, मुनकरात से वही रोकेगा जो मुनकर को जानता होगा। इसी तरह ये इस्लाह उम्मत के लिए ये भी जरूरी है कि एक के लिए जो है जनाब अमजद असीस साहब को दावत दिया जाता है कि वो आए और नाम पेश करें। थोड़ी देर चंद अशार जो है 2-3 मिनट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हमारे नबी का मकाम अल्लाह अल्लाह, हमारे नबी का, हमारे नबी का मकाम अल्लाह अल्लाह, हमारे नबी का मकाम अल्लाह अल्लाह, हो उन पे दरूद व सलाम अल्लाह अल्लाह, वो खैरुल बशर सैयदुल अंबिया है, बनाया है खैरुल अनाम अल्लाह अल्लाह, जमा सब रसूल जगो थे बैतुल आरिफ किसी से कि आता है हर एक के, कि आता है हर एक के काम अल्लाह। जब महशर बका होगा, मेरा बाप मुझसे एक नेकी मांगे और मेरे अमाल में कमी आ जाएगी एक नेकी की, इसीलिए सब लोग अपना रास्ता काटते हुए पढ़ता हूँ। यकीनन आएगा रातों को जाग रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्या नाज़िम साहब, बहुत बड़ी बात है। लेकिन छोटी सी बात एक ये है, चाय वाले भी बीच में आते हैं माशाल्लाह। यहाँ पर इतनी रात को प्रोग्राम चल रहा है और हम लोग बेदारगी का सबूत दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, ऐसे ही सुनते रहिए। और उलमाए कराम हमारे पीछे बहुत सारे हैं और आप लोगों को मालूम नहीं होगा, आप लोगों को बताता चलूं, ये उलमाए कराम जो पीछे बैठे हुए हैं, बहुत दूर दराज से लोग सुनने के लिए इनको आते हैं और बहुत दूर दूर सफर करते हैं ये लोग जाकर के। और आप बेटे का न बेटा बाप का होगा, खुदा बैठेगा जिस दम अर्श की कुर्सी पे महशर में, खुदा बैठेगा जिस दम अर्श की कुर्सी पे महशर में, वो दिन यौमे सजा होगा,
جدار اور جس کی سیرینی گفتار اور جس کی بہترین آواز و انداز کا ڈنکا پورے ہندوستان کے اندر ثانیے قاری حنیف کے نام سے جانا جاتا ہے، جن سے میرے مراد حضرت مولانا حافظ و قاری نسیم اختر صاحب قاسمی صدر المدرسین مدرسہ اسلامیہ جھگڑوا دربھنگا ہے۔ حضرت والا آپ کے سامنے ایسا بچہ پالا ہے تائے حلیمہ گود میں تو نے ایسا بچہ پالا ہے، ایسا بچہ پالا ہے تائے حلیمہ گود میں تو نے کے دلوں کی دھڑکنوں کو اسپیڈ کر دینے والا ایک عظیم شاعر، ایک عظیم عالم نبیل، حافظ قرآن، داعی قرآن حضرت مولانا نسیم اختر صاحب قاسمی صدر المدرسین مدرسہ اسلامیہ جھگڑوا دربھنگا آپ کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا آ جائے گی اور دیگر اعضاء کے اندر بھی خرابی آ جائے گی، اس لیے دل کا کام ہے جتنے اعضاء ہیں سب کو خون سپلائی کرنا۔ اگر دل میں بیماری آ گئی تو انسانی جسم صحت مند نہیں رہ سکتی۔ جو حال ہمارے جسم میں دل کا ہے وہی حالت، وہی مقام ہمارے سماج میں مدارس کا ہے، مدرسے اور مکاتب کا ہے۔ اگر ہمارے مدرسے صحت مند ہیں، ہماری مکاتب اگر صحیح سے چل رہے ہیں تو یقین جانیے ہمارے سروں پر جو ٹوپیاں نظر آ رہی وہ باقی رہے گی، ورنہ یہ مدارس کے اندر اگر سوال آیا، مدارس کے اندر اگر انحطاط پہنچتا ہے Oh